हाय दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ेज़। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो विमेन में लम्प्स होती हैं दैट आर बिनाइन ओनली। एंड हियर इज़ अ इंटरेस्टिंग पार्ट। सो आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू one of these conditions myself. So I will share my story with you a little later in the video after we cover the basics. So let's start with the basics. So the nomenclature of the benign breast disease in the past has been confusing owing to the use of variety of terms, namely fibrosis, adenosis, epitheliosis, fibroadenosis, and fibrocystic disease for the clinical pattern of pain, nodularity, and benign lumps and nipple discharge. But abhi ye sare terms, they are not used anymore, so we don't need to know about them in detail. So let's move forward. So the most benign disorders are derived from minor aberrations. Now these terms are important, okay? Aberrations of the normal process of the development, cyclical hormone related change, involution. अब आप पूछोगे इन्वोल्यूशन क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्यूबर्टी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, राइट? तो एक तो हो गया हमारा डेवलपमेंट, बट एज के साथ फिर उसके बाद उसका श्रिंकेज भी होता है। तो जो ओल्ड एज में श्रिंकेज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन. To address this confusion, there is a concept of, now this is a very important concept, that's why I'm highlighting it with a different color, aberrations of normal development and involution, ANDI, A-N-D-I. Again, I'm repeating it, aberrations of normal development and involution. It was developed in the Cardiff Breast Clinic in the UK, and helps in better understanding and treatment of benign breast diseases. Okay, let's move ahead now. Let's go to etiology. So, in the etiology, first I need to make you understand certain terms. So one thing is TDLU. What is TDLU? Okay, so the full form is terminal ductal lobular unit. Okay, so it is the most active. So first of all, what it is? So it is terminal ductule along with lobule. Okay, so terminal ductule along with lobule is called as TDLU, and it is the most active part. It is the most active part of breast tissue. Okay, TDLU is the most active part of breast tissue and it responds to hormones. ये hormones को respond करता है. Okay, उसके बाद फिर और इसी की वजह से most diseases arise in TDLU only. So it's better if I show you in the text only, in the Bailey. One second. Yeah. So just now I told what is TDLU. TDLU is terminal ductal lobule, which is referred by acronym TDLU, and it is the most active part of the breast tissue that respond to number of hormones. अब यहाँ पे बता रहे हैं कौन कौन hormones को ये respond करता है, like estrogen, progesterone, prolactin, growth hormone. और ये जो सारे हैं, there are 5 to 9 major lactiferous ducts जो कि milk carry करती हैं. All that is fine. Okay. Now let's go back to our thing. So first thing which we need to understand is कि breast is a dynamic tissue. Okay, it's a dynamic structure. तो ये बहुत सारे इसमें alterations होते हैं और इसमें cyclical changes होते हैं in our menstrual cycle. तो आपको तो पता ही है कि menstrual cycle में estrogen, progesterone release होते हैं और जो ये hormones हैं वो growth factors की तरह act करते हैं on the epithelial and stromal cells of TDLU. ठीक है, उसके बाद अब ये pathogenesis of ANDI. ANDI का फुल फॉर्म अभी बताया था, एबरेशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन. तो इसमें जितने भी कोई भी डिस्टर्बेंस होता है इस नॉर्मल एक्टिविटी में, फिजियोलॉजी में, दैट इज़ टू अ वेल डिफाइंड डिजीज प्रोसेस. ओके, तो परटर्बेशन इज़ एनी डिस्टर्बेंस, ओके, एनी ग्लिच इन द नॉर्मल एक्टिविटी जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है. अब हम पैथोलॉजी में चलते हैं. सो द पैथोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड इन टू 3 phases. 3 phases में फर्स्ट फेज़ क्या है? फर्स्ट फेज़ है हमारा लॉब्यूल डेवलपमेंट. सो लॉब्यूल डेवलपमेंट कौन सी एज में हो रहा है? 15 to 25 ईयर्स. सेकेंड फेज़ क्या है हमारा? साइक्लिकल फेज़. साइक्लिकल फेज़ क्या है? 15 to 50 ईयर्स. ओके, सो डोंट यू थिंक लॉब्यूल डेवलपमेंट एंड साइक्लिकल चेंजेस दे आर काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, है ना? उसके बाद थर्ड फेज़ है इन्वोल्यूशन. इन्वोल्यूशन कब हो रहा है? एट 35 to 55 ईयर्स ऑफ एज. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ इन्वोल्यूशन. इन्वोल्यूशन इज श्रिंकेज, जो कि होता है ओल्ड एज में. दैट्स वाई 35 to 55. इट इज़ बिलीव दैट लॉब्यूलर प्रोलिफरेशन, तो लॉब्यूलर प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होता है? फाइब्रोएडेनोमा फॉर्म होता है. और
अगर यहाँ पे श्रिंकेज है, इन्वोल्यूशन है, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, उसकी वजह से सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो द अबरेशन इन द अबव फेजेस में लीड टू अ नंबर ऑफ बिनाइंग कंडीशंस। तो हम इन कंडीशंस को एक एक करके देखते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ हाइपरप्लेशिया ऑफ एपिथेलियम। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स। तो मैं पूछूंगी कितनी लेयर से ज़्यादा सेल्स होने चाहिए, 2 लेयर से ज़्यादा, ऑफ द डक्ट्स एंड असिनाई। अब आप पूछोगे असिनाई क्या होता है? असिनाई वो होता है जहाँ पे एक्चुअली मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्चुअली मिल्क यहाँ पे फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, वट एवर यू वांट टू से। उसके बाद इट में अकर विद और विदाउट एटिपिया। तो एटिपिया तो आपको पता ही होगा, हमने पैथोलॉजी में पढ़ा था, हाई एनसी रेशियो, वट एवर, माइटोटिक फिगर्स, मोर माइटोटिक फिगर्स, और वो सारी चीज़ें एटिपिया में आती हैं। तो इफ़ एटिपिया ऑफ द एपिथेलियल सेल इज़ प्रेजेंट, देन terms like atypical ductal hyperplasia and atypical lobular hyperplasia are used. In features of ADH are seen to involve more than 2 ducts. तो अगर यहाँ पे एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेशिया है तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि 2 डक्ट्स इन्वॉल्व हैं और जिनका डायामीटर क्या है, 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है। और अगर 2 डक्ट इन्वॉल्व हैं और इसमें डायामीटर भी 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे टर्म डक्टल कार्सिनोमा इन C2। ठीक है, तो अब तो पहले हमने देख लिया ये हाइपरप्लेशिया ऑफ एपिथेलियम का, अब हम देखेंगे पैपिलोमा। तो ये पैपिलोमा क्या होता है? So there is a localized hyperplasia of ductal epithelium, okay, that may produce a papilloma within the duct and it is composed of। तो ठीक है, पैपिलोमा का एक स्ट्रक्चर ही बना देते हैं इधर पे। तो यहाँ पे समझ लो कि ये है एक हमारा पैपिलोमा हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी पैपिलरी प्रोजेक्शंस हो गई। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी पैपिलरी प्रोजेक्शंस। अब ये फिल्ड किससे है? ये फिल्ड है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल फाइब्रोवास्कुलर कोर है। तो ये है एक सेंट्रल में क्या है, यहाँ पे फाइब्रोवास्कुलर कोर है। तो फाइब्रोवास्कुलर कोर में क्या होगा, फाइबर्स होंगे और ब्लड वेसल्स होंगी। उसके बाद फिर पैपिलरी प्रोजेक्शंस भी हो गए, और ये प्रोजेक्शंस में यहाँ पे कौन से सेल्स को लाइन किया हुआ है? ये सेल्स हैं एपिथेलियल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स, जिनसे आ रही है हमारी पैपिलरी प्रोजेक्शंस। और ये जो पैपिलरी लीजन्स हैं इन अ डक्ट, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, यहाँ पे 3 टाइप्स के लीजन्स है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट इज सॉलिटरी पैपिलोमा, मतलब सिर्फ एक ही है, और इसका रिलेटिव रिस्क कितना हो गया फिर कैंसर का, 1.5 to 2। अगर ये पैपिलोमेटोसिस क्या होता है देखते हैं। व्हेन देयर इज़ 5 or more papillomas in many ducts with peripheral or often bilateral distribution। ओके, सो इसका रिलेटिव रिस्क तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि ज़्यादा पैपिलोमाज हैं, तो इसका रिलेटिव रिस्क फॉर कैंसर क्या हो गया, 3। उसके बाद फिर है जुवेनाइल पैपिलोमेटोसिस, इसको हम बोलते हैं स्विस चीज़ डिजीज़। अब इसको हम स्विस चीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक ऐसे फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं बताती हूँ। इसमें जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, लाइक देर आर मल्टीपल पैपिलोमाज विद और विदाउट एटिपिया, देर इज़ डक्टल प्रोलिफरेशंस, स्क्लेरोजिंग एडेनोसिस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, टुगेदर ऑल दीज चेंजेस मेक्स अ लॉट ऑफ होल्स एंड स्पेसेस इन द टिश्यू विच लुक्स लाइक अ होल्स इन द स्लाइस ऑफ अ चीज़। इसीलिए हम इसे स्विस चीज़ डिजीज़ बोलते हैं, दैट इज़ जुवेनाइल पैपिलोमेटोसिस। ठीक है, तो जब हम माइक्रोस्कोपी में देख रहे हैं, इतने सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि एक चीज़ की स्लाइस पे हमें दिखाई देते हैं। और इसका जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजेज द लाइफ टाइम कैंसर रिस्क, और ये जनरली कब होता है, यंग वुमेन में होता है, और मल्टीपल फर्म पैल्पेबल नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है सिस्ट फॉर्मेशन। अभी हमने एक इन्वोल्यूशन की बात की थी, इन्वोल्यूशन इज़ लाइक ओल्ड एज। ओके, सो ओल्ड एज में जो श्रिंकेज होता है उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं। सो दैट इज़ किंकिंग और नैरोइंग ऑफ डक्ट्यूल्स इज़ यूजुअली ड्यू टू इन्वोल्यूशन ऑफ स्ट्रोमा। किसका इन्वोल्यूशन हो रहा है? श्रिंकेज ऑफ स्ट्रोमा। इट मे रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्रीशंस इन द लोब्यूल फॉर्मिंग अ माइक्रोसिस्ट, एंड मेनी माइक्रोसिस्ट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोसिस्ट। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सो द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ एंडी क्या है? कोई भी ब्रेस्ट पेन या फिर बिनाइंग नोड्यूलैरिटी। तो जो ब्रेस्ट पेन है यूजुअली कब स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे पर, और इंक्रीज़ करता रहता है इन सीवियरिटी अंटिल 28 डे। बेसिकली सीवियरिटी में इंक्रीज़ करता रहता है जब तक आपके मेंसेस ना आ जाएं। सो व्हेन इट कम्स टू द सीवियर, देयर इज साइक्लिकल प्रोनाउंस्ड मास्टैल्जिया विच इज़ ब्रेस्ट पेन बेसिकली। सो द प्री-मेंस्ट्रुअल exacerbation is there. So now the nodularity and lumpiness. This may be either localized or spread. Okay. So after that, तो जो डिफ्यूज़ थ्रू आउट द ब्रेस्ट, नोड्यूलैरिटी एकदम डिफ्यूज़ भी हो सकती है। ये ज़्यादातर ही बाइलैटरल होती है, और फिर ये ज़्यादातर अपर
आउटर अपर क्वाड्रेंट में होती है एंड इट कैन बी साइक्लिकल हो सकती है कि 1-2 वीक प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और एंड रिग्रेस कर रहा है मेंसेस के बाद. और एक डिस्क्रीट लंप इन द ब्रेस्ट इज कॉमनली अ फाइब्रोएडेनोमा इन द यंग एंड अ सिस्ट इन द मिडिल एज्ड. तो फाइब्रोएडेनोमा कैसे फॉर्म हो रहा था, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट, प्रोलिफरेशन ऑफ लोप्यूल्स. और उसके बाद सिस्ट कैसे फॉर्म हो रहा था, सिस्ट फॉर्म हो रहा था इन्वोल्यूशन ऑफ स्ट्रोमा. तो अब ये फाइब्रोएडेनोमा ये कहाँ पर देखोगे, इन यंग एज. और ये सिस्ट कहाँ पर देखोगे, इन लाइक 35 to 55 year old फीमेल. ओके, लेट्स मूव अहेड. मास्टैल्जिया, व्हाट इज़ मास्टैल्जिया? तो जितनी भी विमेन है 50 to 70% विमेन जो भी ब्रेस्ट क्लिनिक में आ रही हैं उनको मास्टैल्जिया हो ही रहा है, ठीक है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है. इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, मास्टोडाइनिया, मेजोडाइनिया. ट्रू मास्टैल्जिया इट अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट टिश्यू. हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल. सो जो फर्स्ट है साइक्लिकल, उसमें क्या होता है, पेन कब स्टार्ट हो रहा है, मिडल ऑफ द साइकिल में 14th डे पे, और ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है इन सीवियरिटी. और फिर अनटिल विच, ठीक है एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्केल होता है, आई नीड टू टेल यू अबाउट दिस. दिस इज़ कॉल्ड विजुअल एनालॉग स्केल एज फ्रॉम 0 to 10. तो इस स्केल कैसे होता है, सपोज ये है एक स्केल, ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है. तो हम विमेन को बोलेंगे कि ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 आपको कितना पेन होता है. तो अगर उसको माइल्ड हो रहा है तो 1 बोल सकती है, या फिर उसको अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो वो 9 बोल सकती है ना. उसके बाद पर ये पेन कब ठीक हो जा रहा है, 27 to 28 डेज़ बेसिकली आफ्टर मेंसेस. तो यूजुअली दोनों ही ब्रेस्ट इन्वॉल्व होते हैं. और जो पेन होता है वो रिलीव कब होता है, ऑनसेट ऑफ मेंसेस में. और सीवियर फॉर्म की वजह से क्या क्या, ऑब्वियसली जब दर्द बहुत ज़्यादा है तो नींद तो नहीं आएगी, तो लॉस ऑफ स्लीप हो गया, इम्पेयर्ड सेक्शुअल एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ हो गया. और जो पेन है वो रेडिएट कर सकता है अपर आर्म में. तो ऑब्वियसली हमने मेडिसिन में पढ़ा है, जब भी हम अपर आर्म के पेन की बात करते हैं तो हम एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में सोचते हैं. तो हम कुछ लोग इसको मिसडाइग्नोज कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस. उसके बाद में कॉज अभी तक अनक्लियर है कि ऐसा होता क्यों है. बट कुछ पहले कंसिडरेशंस लोग करते थे कि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर कैफीन का इंटेक ज़्यादा हो रहा है, या फिर डाइट्री जो फैटी एसिड्स हैं वो कम ले रहे हैं, या फिर कुछ वाटर रिटेंशन हो रहा है, साइको न्यूरोसिस हो रहा है. पर अभी तक रिसर्च ने तो ये सब कुछ भी सपोर्ट नहीं किया है, नॉट सपोर्टेड बाई रिसर्च, ठीक है. तो जो मोस्ट पेशेंट्स में हम देखते क्या है कि जो ईस्ट्रोजन का लेवल है ना वो नॉर्मल है. तो बेसल लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन वो एक नॉर्मल रेंज में है. तो अब इससे हम समझ क्या रहे हैं कि जो मतलब ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं शायद हो रहा है, पर एक्चुअली यहाँ पे हार्मोन्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जब हम एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टैमॉक्सिफेन और मेलॉक्सिफेन, या फिर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एनालॉग्स दे रहे हैं, डानाजोल, तो उससे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो इससे हमें पता क्या चलता है कि हार्मोन्स के लेवल्स तो नॉर्मल हैं, पर जो ब्रेस्ट का टिश्यू है ना, जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो सेंसिटिव हो गया है, इज सेंसिटिव टू ईस्ट्रोजन. मतलब उसको जितना रिएक्ट करना चाहिए था ईस्ट्रोजन से वो उससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है. इसीलिए जब हम एंटी ईस्ट्रोजन्स देते हैं तो ईस्ट्रोजन जब ऐसे कम बाइंड करता है तो वो उतना रिएक्ट नहीं करता है और मास्टैल्जिया नहीं होता है. तो इट्स अ ब्रेस्ट टिश्यू का थिंग, दैट ब्रेस्ट टिश्यू इज़ ओवर रिएक्टिंग. जैसे कि हम सब ओवर रिएक्ट करते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन पे, वैसे ब्रेस्ट टिश्यू भी ओवर रिएक्ट कर रहा है, उसको भी PMS हो रहा है. क्या कर सकते हैं अब, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं नॉन साइक्लिकल मास्टैल्जिया पे. तो जो नॉन साइक्लिकल मास्टैल्जिया है उस पर हमें क्या देख रहे हैं कि द पेन प्रेजेंट्स एट एनी टाइम ऑफ द menstrual cycle and at any location of the breast and may occur both before or after menopause. It is often well localized. कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको डक्टल एक्टेशिया भी हो सकता है. तो ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, डक्टल एक्टेशिया, पेरीडक्टल मास्टाइटिस. तो जो हम ब्रेस्ट पाल्पेशन कर रहे हैं वो रिवील कर सकता है कि इफ़ देयर इज़ अ वेरी टेंडर स्पॉट कन्फाइंड टू द पॉइंट, और इस टेंडर स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर स्पॉट या फिर ट्रिगर पॉइंट. अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई मस्कुलोस्केलेटल पेन है इन द फॉर्म ऑफ टीट्ज़र सिंड्रोम. टीट्ज़र ही बोलते हैं. चलो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पेनफुल कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है विथ नो रेडियोलॉजिकल एनामली एंड लेटरल चेस्ट वॉल पेन इन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ओवर सेराटस एंटीरियर, जो कि एक मसल है. तो इस सिंड्रोम में बेसिकली हो क्या रहा है, ये कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है जहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है. तो इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं मास्टैल्जिया से, बट और यहाँ पे कोई भी रेडियोलॉजिकल हमें एनामली नहीं मिलेगी.
और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं मैस्टैल्जिया के, जैसे कि ट्रॉमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्क्लेरोजिंग एडेनोसिस हो सकता है, ये सब रिजल्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट पेन में। पर जो ट्रू ब्रेस्ट पेन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंजाइना, इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड। सबसे पहले हमें ट्रू ब्रेस्ट पेन को एंजाइना, बिलियरी कोलिक, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, GERD, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इन सब से हमें उसको अलग करना है। उसके बाद जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें विटामिन D और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी बोन एक्स होते हैं, ठीक है। और पेन दैट इज़ अ नॉन साइक्लिकल मैस्टैल्जिया that may present as. Okay, so only 5% of breast cancer exhibit pain at presentation. तो मतलब 95% ब्रेस्ट कैंसर्स में पेन हो ही नहीं रहा है, और कम से कम वो एक सोल प्रेजेंटिंग फीचर तो नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी को भी पेन हो रहा है बेसिकली। तो अब हम ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो जो ट्रीटमेंट बिगिंस विद असेसमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन भी कर लिया, इमेजिंग भी कर लिया, जिसमें इमेजिंग में हम क्या कर रहे हैं, USG, ठीक है। उसके बाद फिर जो नॉर्मल हमने रीअश्योरेंस भी कर दिया, नॉट ड्यू टू कैंसर हेल्प्स द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन। उसके बाद फिर द टाइप ऑफ पेन कैसा है, साइक्लिकल है, नॉन साइक्लिकल है, हम उसको आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्ड करना है इन अ पेन चार्ट फॉर 1 मंथ। तो हम लेडी को एक पेन चार्ट देंगे जिसमें उसे मतलब हर दिन पे, अभी रुको मैं पेन चार्ट दिखाती हूँ तुम्हें इधर पे, ये है हमारा पेन चार्ट। सो हमें यहाँ पे ऐसे, पहले मैंने बताया था सीवियरिटी के लिए जितना ज़्यादा पेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बोल सकती है कि इट्स अ सब्जेक्टिव टेस्ट। और ये पेन चार्ट क्या है कि जैसे कि सपोज़ मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं 14th डे पर, सॉरी मेरे ओव्यूलेशन हो रहा है 14th डे पर, और तब मेरे को पेन शुरू हो गया मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 14th डे पे मैं ऐसे टिक कर दूँगी, ठीक है। और या फिर अगर मेरे को राइट में हो रहा है तो मैं टिक कर दूँगी, लेफ्ट में हो रहा है तो मैं इधर टिक कर दूँगी, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट पेन। ओके, सो ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है हमारा, फर्स्ट एक्सक्लूड द कैंसर, गिव रीअश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये विजुअल असेसमेंट स्कोर था, टू रिकॉर्ड द सीवियरिटी, एडिक्वेट सपोर्ट देना है, टाइट स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द डे, एंड द कंसिडर्ड मेडिकेशंस जैसे कि फ्लैक्सीड 30 ग्राम डेली, और ऑयल, और इन द इवनिंग प्रिमरोज़। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम मेडिकेशंस को कंसिडर कर रहे हैं। सॉरी, ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ छूट गया कि जब ये नॉन साइक्लिकल पेन हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल और जो अदर रेफर्ड पेन है उसको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट है उसको रिलीव करने के लिए हम एक लोकल इंजेक्शन भी दे सकते हैं, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि ट्रामसिलॉन, और इन कॉम्बिनेशन विद लिडोकेन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस। तो पहले हम पैल्पेट करेंगे, वी विल फाइंड आउट वेयर इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस, और वहाँ पे हम देंगे इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक ट्रामासिनोलॉन एंड प्लस लिडोकेन, ठीक है। और इसके बाद हम रिपीट करेंगे इंजेक्शन जब तक पेन कंट्रोल में नहीं आ जाता है, ठीक है। फिर से करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी नॉट कैंसर, सॉरी ब्रेस्ट पेन। सो सबसे पहले हमने एक्सक्लूड कर दिया कैंसर को। तो जब हमने कैंसर को एक्सक्लूड कर दिया तो हमें रीअश्योरेंस करना है और उसका विजुअल असेसमेंट स्कोर को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम उसे एडिक्वेट सपोर्ट देंगे, ठीक है। और एडिक्वेट सपोर्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, ये जो भी लिखा है इसका मतलब ब्रा है, ठीक है, ब्रा, ठीक है, ये है ब्रा। तो हम उसे बोलेंगे कि एक टाइट ब्रा पहनना है डे में, ठीक है, दिन के समय एक टाइट ब्रा पहनना है। और उसका हम कुछ मेडिकेशंस भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड लेना है 30 ग्राम, या फिर ऑयल ऑफ प्रिमरोज़ लेना है, इवनिंग प्रिमरोज़, जो कि रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड में और अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड में, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे आ गए टॉपिकल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम, बेसिकली एनसेड, टॉपिकल एनसेड दे रहे हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनाक एंड पायरोक्सिकैम 4 times a day, and it is useful in mild to moderate mastalgia. Now if the pain is severe तो हम सिस्टमिक मेडिकेशंस देंगे। अगेन हम ये जो VAS है हमारा, उसका स्कोरिंग सिस्टम में अगर लेडी ने 3 से ज़्यादा स्कोर मार्क किया है तो हम दे सकते हैं टेमोक्सिफेन 10 mg डेली फॉर 3 to 6 months। टेमोक्सिफेन, व्हाट वाज टेमोक्सिफेन, इट इज़ अ एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग। उसके बाद हम दे सकते हैं डानाजोल। व्हाट वाज डानाजोल, डानाजोल वाज आई थिंक इट वाज LH analog 50 to 300 mg daily for 3 to 6 months, and then ormaxifene 30 mg twice a week for 3 to 6 months, used both cyclical and non-cyclical mastalgia for treating nodularity as well. LHRH, that is luteinizing hormone releasing hormone, alone with anti-estrogenic drugs like tamoxifen or oxyfen. It can be given for short duration like 3 months for recalcitrant pain and not relieved by above medications. Thank you so much for supporting. Now the next topic, nodular or lumpy breast, we will cover in next video.
And thank you, Deepak, for supporting so much. And next video, I will share my own story because even I have one of these, as I already told you. But as of now, thank you so much. Bye bye.